Yes, students, our today's topic is we are doing Mughal Empire, and yesterday I have told you about the rulers of Mughal dynasty. First of all, you have read about Babur. बाबर की 3 wars आपने पढ़ी थी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खनुआ एंड बैटल ऑफ चंदेरी. Is it clear? Battle of Khanwa and Battle of Chanderi you have read. And then बाबर का टाइम पीरियड 1526 to 30. किसको हराया बाबर ने? किस डायनेस्टी का एंड हुआ था? दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ. बिकॉज हु गॉट डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत? इब्राहिम लोधी. एंड ही वाज फ्रॉम विच डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी. लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में आपने डिफरेंट डायनेस्टीज पढ़ी हैं, एंड लोधी डायनेस्टी वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत. एंड Ibrahim Lodi got defeated by Babur in the first battle of Panipat. So Mughal Empire was established. Delhi Sultanate rule of Delhi Sultans came to an end. Babur ruled for 4 years, 1526 to 30. First battle of Panipat was held in 1526 between Babur and Ibrahim Lodi. And then Battle of Khanwa between Babur and Rana Sanga. Babur ने सारी लड़ाइयाँ जीती. And then Battle of Chanderi again with Rajputs. Babur won. Humayun came to the throne in 1530 and ruled for 10 years. But there was disturbance during the period of Humayun by Suris. Sher Shah Suri attacked Delhi and he won. And this led to the establishment of Suri dynasty in Delhi. Sher Shah Suri dynasty का था. His real name was Preet, and after hunting a lion, he came to be known as Sher Shah. तो उसका नाम पड़ गया शेर शाह. तो शेर शाह सूरी ruled only for 5 years, means 1540 to 1545. And after the death of Sher Shah Suri's weak successors came to the throne and they ruled for 10 years. It means then Humayun came to know about the weaknesses of the Suri dynasty. Humayun again attacked Delhi in 1555 and he won. And Humayun ruled only for 1 year, and in 1556 Humayun died. Humayun की शेरशाह सूरी के साथ 2 लड़ाइयाँ हुई. You have to learn Battle of Chausa and Battle of Kannauj. You have to learn for MCQ. Battle of Chausa 1539, Battle of Kannauj 1540. इसके बाद शेरशाह सूरी फिर आ गया ना. बैटल ऑफ पहले चौसा हुई 1539, Humayun got defeated. Battle of Kannauj, Humayun got defeated. तो हुमायूं हारता चला गया. शेरशाह सूरी का रूल आ गया. 5 years के लिए रूल किया. But then his weak successors आए and ruled for 10 years. Again Humayun recaptured Delhi and he ruled only for 1 year. और हुमायूं की होगी डेथ. अब हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर बिकेम द रूलर. ही वाज माइनर किंग, 13 years old था. दैट्स व्हाई ये जो उसका आप कहते हो कि वो सारा राजपाट कौन देखता था अकबर के टाइम में? हिज टीचर बैरम खान. बैरम खान लुक्ड आफ्टर द होल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. तो बैरम खान देखता था. जब अकबर बड़ा हो गया, अडल्ट हो गया, तो बैरम खान ने अकबर को उसकी एम्पायर वापस कर दी. तो अकबर ruled for near about 49 years. Akbar was the greatest ruler of the Mughal dynasty. Secular king था ये. Secular king means हर religion की respect करता था अकबर. ठीक है. और साथ में आप बताओगे दीन इलाही religion start किया था. वैसे ही मैं extra बता रही हूँ, it's not given in the book, knowledge के लिए बता रही हूँ. तो दीन इलाही religion start किया था. That is known as religion of one God. आप बाद में जाके अकबर के बारे में पढ़ोगे इसी चैप्टर में. Next is जहांगीर. अकबर के पीरियड में उसके बेटे प्रिंस ने रिवोल्ट किए थे. अकबर के पीरियड में उसके बेटे सलीम ने प्रोटेस्ट किए थे. लास्ट years of अकबर there were revolts by सलीम ही बाद में बना जहांगीर. सलीम बाद में क्या बन गया? जहांगीर. तीनों जहान का मालिक जहांगीर, वर्ल्ड का मालिक जहांगीर. ठीक है. एंड जहांगीर रूल्ड नियर अबाउट, आप कह सकते हो कि 21 years के लिए, 22 years के लिए इसने रूल किया था बस. ठीक है. नेक्स्ट आ गया जहांगीर के पीरियड में प्रिंस खुर्रम ने रिवोल्ट किए थे.
Who revolted during the period of Jahangir? In the last years of Jahangir, Prince Khurram. And Khurram जो था ना, वही बाद में बना शाहजहां. जहांगीर ने एक ईरानियन विडो नूरजहान से मैरिज की थी. ईरानियन विडो नूरजहान बहुत ब्यूटीफुल थी, तो इसलिए उसको कहा गया नूरजहान. मतलब पूरे वर्ल्ड में उससे सुंदर वो कहते कोई वुमेन ही नहीं थी नूरजहान से, तो वो ईरानियन विडो थी. ठीक है, जहांगीर मैरिड नूरजहान. तो जहांगीर के लास्ट वाले इयर्स में प्रिंस खुर्रम रिवोल्टेड. प्रिंस खुर्रम ने प्रोटेस्ट किए थे एंड लेटर प्रिंस खुर्रम बिकेम शाहजहां. ठीक है, शाहजहां. अब शाहजहां रूल्ड फॉर नियर अबाउट 31 ईयर्स. 31 ईयर्स आप काउंट करके देख लेना, 31 आएगा, टाइमलाइन आपको क्लियर हो जाएगी. 31 ईयर्स. ठीक है. अब आफ्टर लास्ट पीरियड्स में, शाहजहां के लास्ट पीरियड्स में, लास्ट ईयर्स में उसके बेटों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए और उनमें से औरंगजेब पावर में आ गया. तो औरंगजेब रूल्ड नियर अबाउट 49 ईयर्स, सेम एज अकबर. अकबर एंड औरंगजेब का टाइम पीरियड सेम है, 49 ईयर्स. ठीक है, आप इस वे से लर्न कर लोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ओनली 1526, बस इतना सा याद रखो. और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट ईयर है बैटल ऑफ पानीपत के लिए. फिर आप 4 प्लस करो. बाबर का आ गया, हुमायूं का बिगनिंग आ गया. हुमायूं को 2 पार्ट्स में बांट लो. फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ईयर्स. ठीक है, देन शेरशाह को बीच में 5 ईयर्स दे दो. देन गिव 10 ईयर्स टू हिज वीक सक्सेसर्स ऑफ शेरशाह. तो आपके पास अपने आप टाइम पीरियड आता जाएगा. देन हुमायूं अगेन रिकैप्चर्ड, रूल्ड फॉर 1 ईयर. आपके पास अपने आप प्लस होके सारा आता जाएगा. देन अकबर 49 ईयर्स. देन जहांगीर 22 ईयर्स. देन शाहजहां 31 ईयर्स. देन औरंगजेब 49 ईयर्स. तो किसका टाइम टेन्योर ज्यादा है? अकबर एंड औरंगजेब. ठीक है, औरंगजेब को हम क्रूअल किंग कहते हैं, अकबर को हम कहते हैं सेकुलर किंग. ठीक, आप आ जाते हैं. ये तो होगी इनकी टाइमलाइन. हाउ टू लर्न मैंने बताया था, बहुत इजी मेथड है. एक लर्न करके अपने आप सारा आपका पीरियड बन जाना है अगर आप इस वे से करोगे. नो नीड टू क्रैम. नो, इज इट क्लियर? नो, कम टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन. First is Mughal traditions of succession. What were the traditions followed by Mughal during the time of succession? मुगल्स जो थे ना, ये इस बात में बिलीव ही नहीं करते थे कि जो बड़ा बेटा है उसी को ही राजपाट देना. ठीक है, बड़े बेटे को ये नहीं, ऐसा नहीं सोचते थे कि सारी पावर सिर्फ बड़े बेटे को देनी है. ऐसा रूल ये फॉलो नहीं करते थे. ये डिवीजन में बिलीव करते थे. अगर इनके 3 बेटे थे तो इनको होता था सब में बांट दो, अपना राजपाट सब में बांट दो, एक को फायदा मत दो. तो मुगल ऐसे थे. दे डिडंट बिलीव इन द रूल ऑफ द टू गिव पावर्स टू ओनली देयर एल्डर सन. दे वांटेड टू डिवाइड द पावर्स बिटवीन देयर ऑल द सन्स. वो सारे सन्स में पावर्स बांटना चाहते थे. तो फर्स्ट इज, अब आपका ये स्टार्ट कहाँ से होता है? मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन. अब इसमें मुगल्स क्या नहीं बिलीव करते थे? दे डिडंट बिलीव इन द रूल दैट एल्डर सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट. मैंने अभी बताया, वो ये नहीं चाहते थे कि जरूरी नहीं होता था कि बड़ा ही बेटा फादर के बाद एम्पायर को संभाले. ऐसा रूल नहीं था उनके पीरियड में. ठीक है, they didn't believe that elder son inherited his father's estate. They followed division of the inheritance among us all the sons. मैंने अभी बताया वो डिवीजन में बिलीव करते थे कि सब बच्चों में, सब बेटों में पावर्स बांट दो, हर एक को एस्टेट दे दो, बांट के दे दो चाहे. ठीक है, अब तो ये था उनका ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन. मीन्स वो ऐसा रूल फॉलो नहीं करते थे कि सिर्फ बड़े ही बेटे को सब कुछ देना है. वो बांटने में विश्वास करते थे, सब बेटों में बांट के एस्टेट देते थे. ठीक है, नेक्स्ट, मुगल्स रिलेशंस विद अदर रूलर्स. तो मुगल्स हैड गुड रिलेशंस विद अदर रूलर्स. व्हेन मुगल्स वर बिकमिंग पावरफुल ना, they expanded their areas. Other rulers came under their, आप कह सकते हो, accepted their authority.
बाकी के रूलर्स उनके अंडर अपने आप ही आते चले गए। व्हेन मुगल्स वर बिकमिंग पावरफुल, अब ये तो रूल ही है, जो पावरफुल होता है लोग उसी के साथ ही आ जाते हैं। व्हेन मुगल्स वर बिकमिंग पावरफुल, ठीक है, तो अदर रूलर्स दे आल्सो ज्वाइंड मुगल्स, उन्होंने मुगलों को ज्वाइन कर लिया। एंड राजपूत रूलर्स दे हैड मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद मुगल्स, राजपूत के मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे मुगल के साथ। मींस बहुत से राजपूत रूलर्स ने अपनी बेटियों की शादी मुगलों के साथ की थी, अकबर के साथ जैसे जोधाबाई है ना। तो राजपूत रूलर्स हैड देयर मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद मुगल्स, राजपूत एंड मुगलों में मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे। मैट्रिमोनियल अलायंसेस मींस मैरिज रिलेशंस। राजपूत गेव देयर डॉटर्स टू मुगल्स, मैरिज कर देते थे अपनी बेटियों की मुगलों के साथ, ठीक है। बट सारे राजपूत से जैसे नहीं थे। अब वहां पे थे सिसोदिया, सिसोदिया राजपूत, सिसोदिया राजपूत जो थे ना, सिसोदिया राजपूत, सिसोदिया राजपूत जो थे ना, they didn't accept the authority of the Mughals, इन्होंने मुगलों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने नहीं किया, सिसोदिया राजपूत, they didn't join the Mughals, ठीक है। There were wars between Shishodia Rajputs and Mughals, and in these wars Shishodia Rajputs got defeated, ये हार गए। They didn't accept the authority of the superiority of the Mughals, they didn't join them, there were wars, Shishodia Rajputs got defeated। But मुगलों ने क्या किया जब सिसोदिया हार गए? मुगल्स नेवर ह्यूमिलिएटेड देयर ओपोनेंट्स, मुगल कभी भी अपने ओपोनेंट्स की, जो उनके अगेंस्ट होते थे, उनकी कभी भी इंसल्ट नहीं करते होते थे। दे नेवर ह्यूमिलिएटेड देयर ओपोनेंट्स, मुगल्स ने इनकी कोई इंसल्ट वगैरह नहीं की। अगर ये हार गए तो दे वर गिवन देयर टेरिटरीज बैक एज जगीर, सिसोदिया राजपूत जो थे ना, दे वर गिवन देयर टेरिटरीज बैक बाय द मुगल्स एज जगीर्स, इन्हें इनकी टेरिटरीज वापस दे दी। समझ आइए बात? मुगल नेवर ह्यूमिलेटेड देयर ओपोनेंट्स, अपने एनिमीज की कभी भी इंसल्ट नहीं करते थे। दे गेव द टेरिटरीज टू सिसोदिया राजपूत बैक एज जगीर्स, but all the Mughals were not same. For example, now I am going to talk about Aurangzeb. Aurangzeb insulted the Shivaji. औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट की थी। When Shivaji came to his palace to accept his authority, औरंगजेब ने तब शिवाजी की इंसल्ट कर दी थी। शिवाजी भी औरंगजेब से हारे थे। शिवाजी मराठा जब हार गए तो he came to the palace, he came to Aurangzeb's court to accept his authority, but Aurangzeb insulted Shivaji. मैंने बोला मुगल्स never insulted their opponents, they gave them their territories back as jagirs. For example, सिसोदिया राजपूत को उनकी टेरिटरीज वापस मिली थी, but all Mughals were not same. कौन डिफरेंट था बीच में से? औरंगजेब। मैंने पहले बिगिनिंग में ही बोला कि थोड़ा सा क्रूअल था ये, थोड़ा क्या क्रूअल ही था ये। तो औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी मराठा व्हेन ही केम टू हिज कोर्ट, तो औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट की थी जब वो उसकी कोर्ट में आए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि मुगलों के, अभी मैंने इतना ही करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुगल रूलर्स, यस्टरडे यू हैव डन अबाउट हु वर मुगल्स, ये आप कर चुके हो, है ना। टू फादर साइड से तैमूर के साथ रिलेशन थे एंड मदर साइड गेंगिस खान। बट ये किस बात में प्राउड फील करते थे? Mughals were proud of their Timurid ancestry because memories of Genghis Khan were associated with massacre, cruel activities, bloodshed, whereas Timur invaded Delhi in 398 AD. So that's why Mughals were proud of their Timurid ancestry. You have read all. Today I have told you the timeline, how to learn, how to prepare timeline, how to prepare this timeline in an easy way। 1526 को लर्न करके बाकी प्लस करते जाओ।
शेरशाह सूरी बीच में आपने अपने आप लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। व्हाट डू यू नो अबाउट द मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन? ये एल्डर सन को सारी पावर्स नहीं देने में बिलीव नहीं करते थे, ये बांट देते थे अपने बेटों में, ठीक है। नेक्स्ट, उनके रिलेशंस कैसे थे दूसरों के साथ? अच्छे रिलेशंस थे। राजपूत के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस साइन हुए हुए थे इनके। राजपूत गेव देयर डॉटर्स इन मैरिज टू मुगल रूलर्स, मुगलों के साथ उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की थी। बट सिसोदिया राजपूत, इन्होंने इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इनमें वाज भी हुई। अब कौन जीता? मुगल। सिसोदिया को उन्होंने इंसल्ट नहीं की, उनकी टेरिटरीज वापस दे दी एज जगीर, बट ऑल द मुगल्स वर नॉट सेम। Aurangzeb, he insulted Shivaji when Shivaji came to the Aurangzeb's court to accept his authority. So you have read till this. Now come to the next topic, Mansabdari system या फिर Mansabdars and Jagirdars. In previous chapter थोड़ा सा आप बैक जाओ तो आप पढ़ के आए हो इक्तादार्स। इक्तादार्स आपने पढ़ा है ना कि लैंड होल्डर्स जो होते थे, सैलरीज नहीं मिलती थी, उसी इक्ता से रेवेन्यू कलेक्ट करके सोल्जर्स को सैलरीज देते थे। याद आ गया इक्तादार्स? अब हम करेंगे मनसबदारी सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब what's the meaning of mansabdar? The term mansabdar refers to an individual who holds the mansab, जैसे उधर मैंने बोला था इक्तादार, who hold इक्ता, who hold land, उसे कहते थे इक्तादार। इधर मनसबदार किसको कहा जाता था? refers to an individual who holds the mansab। mansab का मीनिंग क्या था? पोजीशन और रैंक। mansab means position or rank। mansab means person who holds mansab। अब mansab क्या होता था? पोजीशन और रैंक। mansabdar, the term mansabdar refers to an individual who holds a mansab, जिसके पास mansab होती थी। अब mansab means rank या फिर position। It was a grading system used by Mughals to fix rank, salary and military responsibilities। ये ग्रेडिंग सिस्टम था जो मुगलों ने फिक्स किया। इसमें वो क्या क्या करते थे? रैंक फिक्स करते थे, सैलरी एंड देन मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मनसबदार। अब रैंक एंड सैलरी were determined by numerical value। rank and salary were determined by numerical value called zat। क्या कहते थे उसे? zat। rank and salary were determined by numerical value called zat, ZAT, zat। the higher the zat, the position in the court of the person is higher and उसकी सैलरी भी क्या आएगी? मोर। द हायर द जट मोर सैलरी एंड हायर पोजीशन। अगर बंदे की जट हायर होती, इट मींस उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती और उसकी पोजीशन भी हायर होती। नो लिसन अगेन, मनसबदार्स कौन होते थे? मनसबदार्स रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। मनसबदार refers to an individual who hold a mansab, who holds a mansab। अब मनसब क्या होती थी? मनसब मीन्स रैंक और पोजीशन। मनसबदार कौन होते थे? एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स मनसब, ठीक है, एन इंडिविजुअल हु होल्ड मनसब। अब मनसब क्या थी? रैंक और पोजीशन, रैंक और पोजीशन। अब ग्रेडिंग सिस्टम था, इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम बाय विच मुगल्स फिक्स्ड। अब ग्रेडिंग सिस्टम में वो क्या क्या फिक्स करते थे? रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या क्या फिक्स करते थे? फर्स्ट नंबर 1 रैंक, देन सैलरी। ग्रेडिंग सिस्टम था, रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लर्न मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। rank, salary, military responsibilities। Mansabdar refers to an individual that holds mansab। Mansab means position or rank।
position or rank. It was a grading system in which Mughals fixed rank, salary and military responsibilities of the person. ये सब कुछ वो फिक्स कर देते थे, ठीक है। अब इसी में हम बताएंगे rank and salary was determined by a numerical value called zat. Rank and salary was determined by a numerical value called zat. If the zat was higher, then person had high position and was getting good salary. उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती और उसकी पोजीशन भी हायर होती। अगर किसी की जट ज़्यादा होती ना तो उसकी पोजीशन एंड सैलरी दोनों हायर होती। इज इट क्लियर? मुगलों ने सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस किया? मनसबदारी सिस्टम। मनसबदार कौन होते थे? रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड मनसब और हु होल्ड मनसब। मनसब मीन्स रैंक और पोजीशन। अब ग्रेडिंग सिस्टम था। क्या उन्होंने फिक्स किया? रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पर्सन। एंड देन रैंक एंड सैलरी वाज डिटरमिन्ड बाय, कैसे पता चलता था बंदे का रैंक क्या, उसकी सैलरी क्या है? बाय जट। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जट, अगर जट हायर होती ना किसी की तो मीन्स उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती, उसकी पोजीशन भी हायर होती। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा, ठीक। अब मनसबदार जो होते थे हैड टू कीप अ फिक्स नंबर ऑफ सवार और कवेलरी मैन। मनसबदार जो होते थे दे हैड टू कीप फिक्स नंबर ऑफ सवार, घुड़सवार जिसको कहते हैं, हैड टू कीप फिक्स्ड नंबर ऑफ सवार। सवार मीन्स कवेलरी मैन, घुड़सवार। मनसबदारों को एक फिक्स नंबर दिया हुआ था कि आपने इतने सवार रखने हैं, इतने फोर्स मैन रखने हैं, कवेलरी मैन रखने हैं। नंबर ऑफ कवेलरी मैन वाज फिक्स्ड बाय मुगल रूलर, सो मनसबदार हैड टू कीप फिक्स नंबर ऑफ कवेलरी मैन। इनको फिक्स नंबर ऑफ कवेलरी मैन रखने होते थे। मनसबदार अब क्या करते थे? ब्रोट हिज कवेलरी मैन फॉर रिव्यू। अब इन कवेलरी मैन को फॉर रिव्यू के लिए लेके आते थे। एंड गॉट देम रजिस्टर्ड। सोचो इनके कवेलरी मैन रजिस्टर्ड होते थे। मैं अभी बताऊंगी। देयर कवेलरी मैन गॉट रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपने कवेलरी मैन को लाते फॉर रिव्यू, देन देयर कवेलरी मैन वर रजिस्टर्ड and then their horse branded and then they got salaries। फिर उनको जाके salaries मिलती थी। they received money to pay salaries, क्योंकि कितने soldiers किसके पास, कितने cavalry men किसके पास, तो उसके अकॉर्डिंग उसे सैलरी मनी मिलती थी फ्रॉम विच दे पेड सैलरीज। अब एक मिनट, हम करते हैं मनसबदार अगेन। अब मैं बोलती हूँ, मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है हरगुन, ठीक है। हरगुन को हम बनाते हैं मनसबदार। हरगुन बन गया मनसबदार। तो मनसबदार है कौन? हरगुन को बताना चाहिए। एक रैंक है, पोजीशन मिली है इसे मुगल एम्परर की तरफ से, ठीक। अब उसमें हरगुन ने क्या करना है? हरगुन ने फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स, जितने मुगल रूलर ने बोले है ना, हरगुन हैड टू कीप उतने कवेलरी मैन ये रखेगा, ठीक। एंड देन वो तो रख लिए, बट उनको क्या पता ये कल को झूठ बोल दे वहां पे जाके किसके पास इतने कवेलरी मैन है। ही हैड टू कैरी हिज कवेलरी मैन फॉर रिव्यू। वो प्रॉपर चेक करते थे, रजिस्टर्ड होते थे कवेलरी मैन। हरगुन प्रॉपर उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएगा एंड देन हॉर्स ब्रांडेड, ठीक है। तो फिर जाके हरगुन विल गेट मनी एंड फ्रॉम दैट मनी ही वुड पे द सैलरीज टू हिज कवेलरी मैन। मीन्स हरगुन चीटिंग नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? रजिस्ट्रेशन होती थी सोल्जर्स की, कवेलरी मैन की। इक्तादार तो चीटिंग करते थे, इक्तादार तो मैंने बताया ही था, चीटिंग करनी शुरू कर दी थी, ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। परमानेंट सेटलमेंट में भी आप पढ़ के आए हो, दे कलेक्टेड मोर रेवेन्यू, याद आ गया? जमींदार कलेक्टेड मोर रेवेन्यू एंड पेड लेस अमाउंट टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट फिक्स किया हुआ था। अगर गवर्नमेंट ने 1 लाख फिक्स किया हुआ है तो जमींदार कलेक्टेड 1.5 लाख कलेक्ट करके तो 1 लाख देके 50,000 पॉकेट में, तो वो लोग करप्ट हो रहे थे। इधर भी ऐसे ही था, ठीक है। इक्तादार भी ऐसे हो रहे थे, जो कलेक्टेड मोर एंड मोर रेवेन्यू
फ्रॉम देयर इक्तास, उसमें से सैलरी देनी, बाकी अपनी पॉकेट में। बट इधर ऐसा नहीं था, मुगलों ने बहुत तरीके से किया सब कुछ। इन्होंने क्या किया, ब्रॉड ना, ये जो मनसबदार होते थे ना, दे हैड टू ब्रॉड देयर कैवलरी मैन फॉर रिव्यू। तो इनके कैवलरी मैन जो होते थे गॉट रजिस्टर्ड एंड हॉर्स ब्रांडेड, देन दे गेट मनी, they got money, from which money, from that money they could pay salaries to their cavalry men. So is it clear? ये नहीं है कि हरगुन बोल देगा जाके मेरे पास 2000 कैवलरी मैन है और इसको 2000 के पैसे दे दो, ऐसा नहीं, इसके 2000 मैन वहां पे रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। नेक्स्ट, सो दिस इज अबाउट मनसबदार्स, कि कैसे मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट। अब जैसे इक्तादार्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ना फ्रॉम देयर एरियाज, सेम एज मनसबदार्स, they were not given salary, ने रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, they collected revenue from their areas. Mansabdars were not given cash salaries by the rulers, they collected revenue from the land assigned to them. उस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे मनसबदार्स, ठीक है। अब मुगलों के पीरियड में क्या था, इक्तादार्स तो उस एरिया में रहते थे जहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, बट यहाँ पे मनसबदार कई बार उस एरिया में नहीं रहते थे। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी हरगुन का नाम बोला, इसको हमने मनसबदार बनाया, तो हरगुन फॉर एग्जांपल जलंधर है, ठीक है, जलंधर का एरिया हरगुन को मिल गया, टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम जलंधर, तो जरूरी नहीं हरगुन जलंधर में ही रहेगा, नो, ये कहीं और भी रह सकता है। अगर ये इक्तादार होता तो जलंधर में ही रहता, बट ये है मनसबदार, तो ये कहीं और भी रह सकता है, वहां पे रह के इसके यहाँ पे सर्वेंट्स होंगे, हु कलेक्टेड रेवेन्यू फॉर हरगुन, ये अपने सर्वेंट्स छोड़ देगा जलंधर में, हु कलेक्टेड रेवेन्यू फॉर हरगुन, तो ये आप कहीं और जाके भी रह सकता है, जरूरी नहीं है वहीं पे ही रहते थे मनसबदार। इट वाज नॉट कंपल्सरी फॉर द मनसबदार्स to live in the areas from where they collected revenue. Sometimes revenue was collected by their servants also, and then they paid the amount to the mansabdar. वो पे कर देते थे मनसबदार को, मीन्स इन्होंने सर्वेंट्स रखे हुए थे टू कलेक्ट द रेवेन्यू। अभी इतना समझ आया। मनसबदार थोड़ा सा टॉपिक ऐसा ही है, बट इक्तादार के साथ मैच करता है, बिल्कुल मैच भी नहीं करता, थोड़ा सा मैच करता है इक्तादार के साथ, ठीक। मनसबदार जो होते थे दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड गिवन टू देम बाय द रूलर, but it's not compulsory for the mansabdar to live in that area from where they collected revenue. Sometimes they left their servants in the area and the servants collected revenue for them. Now is it clear? इतना समझ आ गया। मनसबदार को फिक्स्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स रखने होते थे, कैवलरी मैन, और उनके कैवलरी मैन कैसे होते थे, रजिस्टर्ड, फोर्सेस क्यों आते थे, ब्रांडेड, और तब जाके उन्हें मनी मिलती थी, एंड दे पेड सैलरी टू द सोल्जर्स फ्रॉम दैट मनी, उस मनी से वो सोल्जर्स को सैलरी देते थे। खुद की सैलरी कहाँ से लेते थे, फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द एरिया गिवन टू देम। अब मुगल बहुत चालाक थे, ये उनके जैसे दिल्ली सुल्तान जैसे नहीं थे। अकबर ने तो लैंड असेसमेंट तक करवाई, ताकि जितनी सैलरी है ना, जैसे हरगुन की सैलरी फिक्स होगी 1 लाख, तो लैंड असेसमेंट करवा के चेक किया गया कि जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो 1 लाख से कहीं ज़्यादा तो नहीं होता। वो प्रॉपर चेक करते थे, लैंड असेसमेंट होती थी कि इसको उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट होता है ना जितना हमने सैलरी देनी थी इसे, कहीं ये ज़्यादा तो नहीं कलेक्ट कर रहा। तो ये सब कुछ इन्होंने किया। वहाँ पे इक्तादार तो करप्ट हो गए थे, वो तो जितना मर्जी कलेक्ट करी जा रहे थे, तो इधर फर्क आए। अकबर ने तो लैंड असेसमेंट तक करवाई। क्यों करवाई लैंड असेसमेंट? सो दैट मनसबदार कुड कलेक्ट ओनली द रेवेन्यू सेम एज द अमाउंट गिवन टू देम एज सैलरी। मनसबदार उतना ही रेवेन्यू ले पाए जितना उनकी सैलरी मुगलों ने रखी थी, ताकि वो ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट ना कर पाए। तो इस वे से